Okay, so first of all, let's understand what is computer language. Okay, there are basically two types of computer language. One is high level language and one is low level language. Okay, and what are the key differences between them? High level language is a kind of language that we humans can understand. For example, C, C++, Java, Python, PHP, Pascal, JavaScript, C Sharp. These all are high level languages. These are understood by our humans. And another type of languages are called low level languages. These are pretty much difficult for us humans to understand, or in some cases, it is almost impossible for a human to understand low level languages. For example, we try to communicate uh, amongst our friends. What language do we use? We use either English or Hindi or Bengali or anything. Okay, right? We try to communicate with a help of a language. So whenever we are trying to communicate with a computer, we also need a language for it. Okay, without any language, without any medium, we won't be able to communicate with the computer. So hence the discovery of programming languages came into pictures. So these are the two types of languages. One is low level and one is high level. We are learning C programs, so it is a high level program language. But sometimes it is also called middle level language because it sometimes bridges the gap between low level and high level. We'll discuss it further. Okay. And in low level languages, there are two subcategories. One is machine language and one is assembly. Machine language is nothing but all the binary codes, 0101 sequence of zeros and ones. Okay, if you want to communicate with the computer won't understand our native language. It won't understand English, Hindi, Marathi, Bengali, or computer only understands sequences of zeros and ones. So to communicate with the computer, the instructions should be given in machine language. Okay. And above the machine language, there comes assembly language. Assembly language uh, is somewhere between high level language and machine level language. It is also understood by us humans, but it is pretty tough. Okay, the syntaxes, the instructions of assembly level languages, these are pretty tough for us humans to understand. So we have ready-made softwares for it, which converts high level language into machine code or assembly code. Those are called interpreters and all. We'll discuss it after some time. Okay, up to this, anyone has any questions? No, it's fine. Okay. Yes, sir. Excuse me, sir. Can I say one thing? It means like Java, JavaScript, C++, Python, they all our application belongs to the C. Am I right? Oh. It means first of all we learn C programming language. Then after I will learn the another languages like a Python, C++. Okay, okay. Thank you, sir.
No, No, never, never. it's too long. This is the reason we have made high level languages so that we write codes in high level languages and the compiler will convert our high level language into machine language. Okay. So what is machine language? It is nothing but a binary language in software programming. The binary language consists of two numbers, zeros and ones. Okay. The computer only understands zeros and ones. One is high voltage and one is low voltage. So we have created programs like C, C++, Python so that it becomes easy for us humans to give instructions to the computer. Because we humans can't give instructions like this 0 1 0 1 1 0. We won't be able to understand or read these instructions. So the job of converting the high level language into these machine codes is of the compiler. Yeah, compiler. Wait, let's write the first line of code. Okay, okay everybody in your laptop search for this website Geeks for Geeks ID and click on the first link ide.geeksforgeeks.org. Okay, this is a basic template. This is a basic template of C program. There is nothing. Don't worry, I'll explain each and everything. What is the meaning of this header file if a hashtag include stdio? What is the meaning of int main? What is this backslash code? What is return zero? Everything I'll understand. Uh, I will make you understand everything. Just be a little patient. Let's suppose we write first line. So, what is this line? What does this line means? Okay, everybody listen carefully. Printf is an Excuse me, sir. huh? Excuse me. Uh, can we explain in Hindi? Because we clearly understand what the matter is going on. I can If you understand don't, in Hindi, but everybody will not be comfortable in Hindi. There are some students who have yeah, a problem. sure, don't worry. Okay, I'll mix Hindi and English both. Okay. Yeah, sure, no issue. Don't. So what is the meaning of this statement? Okay, इस line का मतलब क्या होता है? This printf means to print anything. Okay. So whenever we are trying to output anything on the screen, we will have to write this printf statement. What is the syntax of this printf statement? Only this. Just write printf, open a bracket, close a bracket, and a semicolon after the statement. And now put inverted commas, double inverted commas. Now whatever we write inside this will be printed as it is in the output. As it is. Okay. Let's suppose we are writing hello world. मैं जो कुछ भी लिखता हूँ इस printf के अंदर, इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो as it is print हो जाएगा. अभी देखते हैं कैसे. Let's run this program. Look at the output. Hello world. Right. So whatever we write inside this printf statement gets printed as it is. I'm writing this. I'm running this code. Look, I got this knockout. Hi, my name is Vishnu. So whatever I write inside this printf statement gets printed as it is. तो मैं जो भी इसके अंदर लिखूंगा वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा सीधा सीधी.
और अभी इसके बारे में मत सोचो ये सब क्या है, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, इंट मेन क्या होता है, रिटर्न जीरो क्यों लिखा हमने, ये सब के बारे में अभी मत सोचो, मैं बाद में Uh, बताऊँ। So congratulations, we have written the first line of code. तो अभी आप लोग सब अब प्रोग्रामर बन गए हो। Written the first line of code successfully. That's great. Yeah. So let's understand some technicalities of what is going on here. अभी समझते हैं क्या हो रहा है एक्चुअल में। ये जो हमने कोड लिखा है, the code we have written here is actually a high level language, okay, but the computer can't understand this language. कंप्यूटर को समझ में नहीं आता ये हमने क्या लिखा, कंप्यूटर को नहीं पता ये क्या होता है, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो क्या है, इंटमेन क्या है, ये कंप्यूटर को नहीं पता, ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता ये क्या होता है। तो अभी क्या होता है जब मैं ये रन बटन दबाता हूँ, वेन एवर आई एम क्लिकिंग दिस रन बटन, वॉट हैपन्स इज दिस होल कोड, ओके, ये जितने भी लाइन है ये सबको मिला के बोला जाता है कोड्स, दीज आर कोड्स, दिस इज अ कोड, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, दिस इज अ कोड, इंट मेन दिस इज अ कोड, दिस इज अ पीस ऑफ कोड, दिस इज अ पीस ऑफ कोड। तो ये जितने भी कोड्स हैं ये सारे कोड्स, these are compiled and converted into zeros and ones by the compiler, okay। वापस से बोलता हूँ, ये जो भी कोड्स हमने लिखा है ये कोड्स कंपाइलर जीरो एंड वन में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं जैसे रन दबाता हूँ, रन दबाने से क्या होता है, हमारा कंपाइलर काम करने लगता है। द कंपाइलर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग दिस हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, एंड मशीन कोड में जब वो कन्वर्ट कर देता है, देन दैट मशीन कोड इज गिवन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझता है, फिर वो मैसेज रिक्वेस्ट वापस भेजता है हमारे पास, और फिर वो हाई लेवल लैंग्वेज में वापस कन्वर्ट हो जाता है एंड वी गेट द आउटपुट। So what is the purpose of compiler? It converts high level programming language into machine understandable binary codes. It acts as a translator, okay। Compiler converts the whole code of program into machine language at a time. तो ये अपना जो पूरा कोड है, दिस होल कोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस, इस टाइप का कुछ 01 01 01 इस टाइप से कुछ ये भेज रहा होगा बना के, बट दैट इज नॉट आवर पर्पस, हमें नहीं जानना ये क्या भेज रहा है, हमें तो सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज लिखना। मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का, वो अपनी चिंता करने का नहीं है, वो कंपाइलर देखेगा इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ओके। सो दिस इज द रोल ऑफ अ कंपाइलर, टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब अपने सोर्स कोड, ये जो हमने लिखा ये था अपना सोर्स कोड, इसे सोर्स कोड बोलते हैं, दिस इज आवर सोर्स कोड। द कंपाइलर इज कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, दिस इज द रोल ऑफ अ कंपाइलर, और फिर हम आउटपुट देख पाते हैं। एंड जो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज करते हैं वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजुअली फास्ट होते हैं। दिस इज द रीजन दैट सी एंड सी प्लस प्लस इज द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। When you compare it with Java or Python, they don't use compiler, they use interpreter. That's why they are a little bit slow. I'll explain you what is interpreter after one slide. And the programs like C, C++, these programming languages use compiler. This is why they are fastest. So जो बीटेक बैकग्राउंड से वो जानते होंगे, जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स ऑलवेज यूज C++ फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C और C++, बिकॉज वहाँ पे उन्हें अपना टाइम लिमिट एक्सीड ना हो जाए ये सब देखना पड़ता है। तो वहाँ पे अपने कोड को फास्ट एग्जीक्यूट करवाने के लिए सी एस सी प्लस प्लस बेस्ट है। और यही कारण है जितने आजकल गेम्स भी बनते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर ऑल्सो written in C and C++ because it is a very raw language and it is very fast. Next comes the term interpreter. What is an interpreter? Is uh, what is an interpreter? It acts same as a compiler, okay। जैसे कंपाइलर काम करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी
कोड्स में कन्वर्ट करने का वही सेम काम है इंटरप्रेटर का. द ओनली डिफरेंस इज दैट इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. ठीक है, which means if I write a code in Java, okay, if I write a code in Java, hello, don't worry about all these, ये सब आप लोग बाद में पढ़ेंगे जावा क्या होता है क्या नहीं. Okay, I'm running this code in Java. Hello world, the output gets printed. तो ये क्या हो रहा है, जावा में क्या काम करता है इंटरप्रेटर. जावा पाइथन ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें कंपाइलर इसमें इंटरप्रेटर होता है. व्हाट इज द जॉब ऑफ इंटरप्रेटर? इट ऑल्सो कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. द ओनली डिफरेंस बीइंग, सिर्फ एक डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर कंपाइलर में कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. तो इंटरप्रेटर फर्स्ट कन्वर्ट्स दिस लाइन into machine code, then it converts this line into machine code, then it converts this line into machine code, then converts this line, this and this. Okay, so it executes line one by one and checks for the error. But compiler में क्या होता है, it executes the whole program at once. Compiler ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद चेक करता है एरर है कि नहीं. लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, वो एक लाइन भी अगर गलत होगा तो वो यही एरर दिखा देगा अपने को. तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है कोड्स को एंड कंपाइलर एक ही बार में पूरा कोड्स को कंपाइल कर देता है, उसके बाद चेक करता है. बट ये पहले कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, फिर चेक करेगा, फिर इसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, फिर चेक करेगा, फिर इसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, फिर चेक करेगा. तो ये की डिफरेंस है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. लो, और सोर्स कोड है, इसको इंटरप्रेटर चेक करता है, इंटरप्रेटर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर इसे चेक करता है. अगर चेक है तो ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर कुछ गलती हुई तो वहीं एरर दिखा देगा. बट कंपाइलर ऐसा नहीं है. कंपाइलर एक ही बार में पूरा सोर्स कोड कंपाइल कर देगा मशीन कोड में, उसके बाद वो चेक करेगा कि एरर है कि नहीं. लेकिन कंपाइलर पहले ही एग्जीक्यूट कर देता है उसको मशीन कोड में, फिर चेक करता है एक एक लाइन करके. दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. एंड देन कम्स असेंबलर. असेंबलर का भी वही काम है, इट कन्वर्ट्स अ लैंग्वेज इनटू मशीन कोड. बट द डिफरेंस इज ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, ये मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. द जॉब ऑफ असेंबलर is to convert assembly language into machine code. We had read earlier here there are two types of low level language, machine and assembly. So high level language are converted into machine codes via compiler and interpreter, and assembly language is converted into machine language by assembler. Okay, assembly level languages, ये कुछ एग्जांपल्स है असेंबली लैंग्वेज के, ARM, MIPS. बट ये सब हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं. जो एम्बेडेड सिस्टम्स माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ते हैं वो लोग ये सब लैंग्वेज में कोड करते हैं. अपन को ये सब लैंग्वेज सीखने के कोई फायदा नहीं. ठीक है, तो अब तक किसी को कुछ डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट के लिए? अच्छा, क्लास लेकिन सीरियसली सब करना. You will not get such type of classes in free. I am giving you this class Yes, sir. free of cost. Okay, तो थोड़ा मेरे एफर्ट्स को भी ध्यान में रखना. भी मैं आप सबको इतना बताता हूँ. अच्छा, अभी तक डाउट है किसी को कुछ? एनीवन? क्लियर है. Okay. अभी ये कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है सी प्रोग्रामिंग के, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये एक बार आप लोग गो थ्रू करेंगे तो समझ जाएंगे. फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन ऑपरेटिंग सिस्टम. C language was originally developed to write Unix operating system. Unix kernel, Microsoft Windows utilities, and operating system applications and big segment of Android operating systems are written in C language.
तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि सी लैंग्वेज में बनते हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब आज भी सी लैंग्वेज में बनते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस। उनमें जावा वगैरह यूज़ नहीं होता उतना, क्योंकि वो सब स्लो है और उनमें कुछ की फीचर्स भी है ऐसे जो सूटेबल नहीं बनाते जावा वगैरह को ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की बात आती है या एंड्रॉयड सिस्टम की बात आती है, वी ऑलवेज चूज सी एंड सी प्लस प्लस। Next is development of new languages. The development of various languages has been influenced by C language. These languages are C++, C hash, Python, Java, JavaScript, Perl, PHP, Verilog, D, Limbo, and the list goes on. तो ये जितने भी लैंग्वेजेस है ये सब सी से इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब once if you understand C language, guys, if you understand C language, you will be able to understand any other language within 3 to 4 days. That is my guarantee. Go and learn Python after C programming. You will hardly need 3 to 4 days to learn Python. Or you go and learn JavaScript or Java, any language. It will hardly require 3 to 4 days, 5 days, or max a week. Okay, so C language will lay the foundation of your programming. Third application is it is used in computation platforms like MATLAB, Mathematica. ये सब application softwares हैं. These are application softwares. These are also made in C language. MATLAB वगैरह I guess बीटेक में कभी यूज़ किए होंगे। यहाँ कौन बीटेक से नहीं है, यूज़ किया है कभी मैटलैब कॉलेज में? नो सर, नहीं सर, अभी तक भी नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये सब भी सी में कोड होते हैं, आज भी सी में बनते हैं। नेक्स्ट इज एम्बेडेड सिस्टम्स। सी लैंग्वेज इज प्रिफर्ड चॉइस फॉर राइटिंग ड्राइवर्स। ठीक है, तो ड्राइवर्स पता है किसी को क्या होता है? ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, नाम तो सुना होगा। एनीवन नोस? भैया बीटेक में हो तुम, बताओ क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? नो आइडिया। किसी को नहीं पता डिवाइस ड्राइवर? नो। कोई लैपटॉप नहीं चलाता क्या यहाँ? कोई लैपटॉप वैपटॉप नहीं चलाते? हाँ, कभी यस सर, देखा है चलाता जब, हूँ ना। कभी देखा है जब एक नया यूएसबी डालते हो या अपने मोबाइल को वो कनेक्ट तो करते हो? उसे इम्पोर्ट कर दो होता है ना वहाँ पे वो सिस्टम से। हाँ, तो एक एक पॉपअप आता हाँ, है, एक इंस्टॉलिंग डिवाइस पॉपअप। ड्राइवर फॉर योर हाँ, सिस्टम। यस सर। वो क्या है एक्चुअली डिवाइस ड्राइवर? इट इज अ वो इंटर, एज अ थ्रू ऑफ डिस्क ड्राइवर है। हाँ, वो एज अ थ्रू ऑफ डिस्क ड्राइवर। वो वो एक्चुअली, बिलोंग वो ब्लिंक करती है ना सर उस टाइम पे। हाँ जब हाँ, वो कोई भी यहाँ यहाँ सिस्टम पे आप इंपोर्ट करते हैं वो ब्लिंक करती है। उसे हम लोग सब डिस्क ड्राइवर कहते हैं। कोई भी नया सिस्टम लगाओगे तो पहले उसका हम्म, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होता है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू कॉपी पेस्ट एनी फाइल फ्रॉम योर मोबाइल इनटू योर कंप्यूटर, तो मोबाइल को कैसे पता कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को कैसे पता मोबाइल क्या है? तो उसके बीच एक लिंक होता है, वो लिंक बनाता है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर दैट इज अ इंटरफेस बिटवीन एन एक्सटर्नल हार्डवेयर एंड योर पर्सनल हार्डवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर्स जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब भी सी प्रोग्रामिंग में बने हैं। एक पॉपअप देखा ही होगा काफ़ी लोगों ने, कभी याद हो कि इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर फॉर योर सिस्टम ऐसे करके दिखाता है जब भी कोई नया यूएसबी या मोबाइल को आप कनेक्ट करोगे अपने लैपटॉप से। उसके बाद ग्राफिक्स एंड गेम्स, इसमें भी यूज होती है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ वैरायटी ऑफ ग्राफिक्स एंड गेमिंग एप्लीकेशंस लाइक आर्चरी, बाउंसिंग बॉल, चेस एक्सेट्रा। अभी ये जो पबजी भी है खेलते होंगे, कितने लोग खेलते हो पबजी? खेला है किसी ने पबजी इधर? हाँ, मैंने खेला है। बस बस एक, और कोई? पहले खेला था, हम्म, अब बंद कर दिया जब से बैन हुआ है। अच्छा, पढ़ाकू लोग हैं लगता है यहाँ पर, कोई पबजी नहीं खेलता है, एक आध खेलते मैं हो। भी बीजीएमआई खेलता हूँ अभी, कभी कभी। अभी तो बैन हो गई पबजी, तो बीजीएमआई आ गया इंडिया वर्जन। इंडिया में। हाँ, पबजी का जो कोर इंजन है वो भी सी में बना हुआ, सी प्लस प्लस में बना हुआ, सी प्लस प्लस में।
तो ये सारे एप्लीकेशंस है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सी प्रोग्रामिंग के, जहाँ आज भी सी प्रोग्रामिंग यूज होता है ये सब जगह। ठीक है, अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। सही है। कुछ पढ़ाने का स्टाइल कुछ टफ लगे कुछ तो बताना, समझ में आ रहा ना है? अच्छी है, सब अच्छा से बहुत इजी वे में समझ आ रहा है। ओके। सर एक वैसे डाउट था मुझे, हाँ, कौन है? जैसे कि अगर सी लैंग्वेज नहीं सीखना तो बाकी अदर लैंग्वेज सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें अदर लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम होगा हम्म, सीखने में। फॉर एग्जांपल अगर हम्म, सीखने जाओगे डायरेक्ट या जावा सीखने जाओगे, तो वहाँ पे हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम होगा कॉन्सेप्ट को समझने में, बिकॉज तुम्हारे फंडामेंटल्स तो थे नहीं। तुम डायरेक्ट अच्छा, जब तुम अगर मान लो क्लास 5 में डायरेक्ट एडमिशन ले लिए बिना नर्सरी से क्लास 4 तक पढ़े, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि ठीक, कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में, कुछ तो आएगा समझ में, लेकिन दिक्कत ज़्यादा होगी, दिक्कत होगी। तो वही काम है। जैसे ओवरलोड हाँ, हाँ, तो वही काम है। सी प्रोग्रामिंग अगर आप कर लेते हो अच्छे। बेस्ट बेस्ट हाँ, जी, हाँ, हाँ। तो सी प्रोग्रामिंग अगर पहले सीख लेते हो, तो अब आपको जो भी लैंग्वेज फ्यूचर में सीखनी हो, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, सी हैश PHP, कुछ भी सीखना हो आपको, तो आप बहुत ईजी होगे, बिकॉज have mastered the fundamentals in C program। सी प्रोग्राम बहुत ही एक रॉ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें सब कुछ आपको फ्रॉम द स्क्रैच कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बाकी सब लैंग्वेजेस जो है पाइथन वगैरह वो बहुत इजी है, वो आपको बहुत इजी लगेगा। सी सीखने के बाद पाइथन आपको एकदम बच्चा लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज है ओके, के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे। वो सब थोड़े एडवांस लैंग्वेजेस है, वो बनाया गया बस प्रोग्रामर के टाइम को सेव करने के लिए। बट सी प्रोग्रामिंग आज से 50 साल पहले बनी थी, तो उस समय मैनुअली सब कुछ लिखना पड़ता था सी में, तब जाके एक प्रोग्राम बनता था। तो सी सीखने से आप मैनुअली सब कुछ कोड्स लिखना सीखोगे, लॉजिक डेवलपमेंट सीखोगे। प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लॉजिक डेवलपमेंट। तो सी लैंग्वेज इन माई नॉलेज इज द बेस्ट लैंग्वेज अपने लॉजिक को डेवलप करने के लिए। सी एंड C++, ये दोनों लैंग्वेज बेस्ट है फंडामेंटल्स और बिगिनर्स के लिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सी और C++ बिल्कुल सिमिलर ही ठीक है सर। है। सी प्लस प्लस के पास दो चार सिंटैक्स अलग है, बाकी काम पूरा वो सेम है, जैसे सी में है पूरा सेम है C++। तो ये दो लैंग्वेज पहले मास्टर कर लो, उसके बाद आप कोई कोर्स भी अगर लेते हो बाद में, अगर मान लो आपको वेब डेवलपर बनना है, तो आप वो वहाँ जो सब टेक्नोलॉजी सीखोगे, PHP, जावास्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेजेस, तो देखना आपको कितना आसान लगेगा, बिकॉज यू हैव लर्न सी प्रोग्रामिंग अर्लियर। बट जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली चल जाते हैं सब सीखने, जावास्क्रिप्ट, PHP सीखने, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आता है सब सीखने में, क्योंकि उनका बेसिक्स वीक रहता है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। तो सी प्रोग्रामिंग एक बार सीख लो, उसके बाद आपको जो भी लैंग्वेज सीखना होगा फ्यूचर में आप बड़े आसानी से सीख पाओगे। अभी आपको बनना क्या है? आपका मतलब एम क्या है ऐसे फ्यूचर में? कोडिंग क्यों सीख रहे हो? हेलो? माइक प्रॉब्लम है। हेलो नरेंद्र? उसका प्रॉब्लम चल रहा है। जी सर। हाँ सर। सीख रहे हो, कुछ रीजन तो होगा। ब्रेक हो रही सर नेट। हाँ, सर वेब डेवलपर चाहिए, वेब डेवलपर, डेवलपर बनता। डेवलपर बनना है। अच्छा, सही है। हम्म, अभी क्या कर रहे हो आप? अभी सर ज्यादा कुछ नहीं सीखा, बस HTML और CSS सीख रहा हूँ, मतलब हो चुका है थोड़ा। अच्छा, अच्छा। नहीं मतलब आप अभी एकेडमिक्स में क्या हो, मतलब BA कर रहे हो, B.Com कर रहे हो, कि BCA B.Tech क्या कर रहे हो? बीटेक सर, सर बीटेक। अच्छा, अच्छा, B.Tech, सही है, सही है। हाँ, ठीक है, वो सब सीखते रहो, वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी।
बट सी प्रोग्राम आपको काफी, जब आप जावास्क्रिप्ट सीखने जाओगे तब आपको देखना फायदा होगा कितना सी सीखने का। ठीक है। ओके, सो हो गया। अब हम आते हैं असली, अब अभी जो चल रहा था वो सब ट्रेलर था, ठीक है, असली असली मूवी अब स्टार्ट होगी। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं रियल अपने सी का, एकदम कोर सी। सबसे पहला द फर्स्ट टर्म इज लाइब्रेरी। व्हाट इज लाइब्रेरी इन सी? लाइब्रेरी इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स। ओके, सो यहाँ जो था सी, सी प्रोग्रामिंग में चल जाओ। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है दिस लाइन hashtag include stdio.h, this is nothing but called a header file. Okay. So this line is called a header file. What is the purpose of header file? Anyone? Anyone knows what is the purpose of writing header file? Header file किसी को पता है? नहीं? ओके, सो हेडर फाइल जो है इसका पर्पस होता है, ये जो भी अपन लिखते हैं यहाँ पे वॉट एवर वी राइट, फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग प्रिंट एफ, हेलो बोल, ठीक है, तो ये प्रिंट यस एफ सर। का, या आपको पता है हेडर फाइल मतलब? नहीं, ठीक है, ओके लिसन। तो ये जितने भी ये सब आपको दिख रहे वर्ड्स, प्रिंटफ, रिटर्न, मेन, ये सब का क्या मतलब होता है? ये सब का जो मतलब होता है वो हेडर फाइल के अंदर छुपा है। ठीक है, हेडर फाइल क्या होता है? एक ऐसा फाइल है जिसके अंदर प्रिंटफ का मतलब समझाया गया, जिसके अंदर रिटर्न का मतलब पता है, जिसके अंदर मेन का मतलब पता होता है। तो हेडर फाइल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस। ये जितने भी आप देख रहे हो प्रिंट एफ वगैरह, ये क्या, ये सब इनबिल्ट फंक्शंस है। तो इन फंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन प्रिंट एफ? दैट इज स्टोर्ड इन हेडर फाइल। ओके, प्रिंट एफ है, अपन अभी बाद में देखेंगे स्कैनफ, गेट्स, गेट कैर, पुट्स, ये सब होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस है सब। So the meaning of this function is stored in header file. The definition, I would rather say the definition of this printf is stored in header file. And which header file? This header file, stdio.h. This header file contains the definition of printf. Similarly, there are many types of header files like stdio.h, onio.h, string.h, stdiv.h, stdlib.h, sorry, math.h, time.h। तो ये सब हेडर फाइल का अपना अपना काम होता है। अभी अपने को सिर्फ आउटपुट दिखाना है तो अभी stdio.h से काम हो जाएगा, बट कभी अपने आपको कुछ मैथ फंक्शन यूज करना होगा, स्क्वायर रूट वगैरह निकालना है, ठीक है, तो कंपाइलर को नहीं पता स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, उस समय अपन को एक और फंक्शन हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगा, इस तरह इंक्लूड मैथ डॉट एच। जब भी अपन स्क्वायर रूट वगैरह निकालेंगे, ठीक है, जब अपन स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे, ये सब don't worry about the terms, string and all, everything I'll teach you later. Whenever we are working with strings later in programming, we'll have to add the header file string.h, because strings से related जितने भी terms है उन सब का definition string.h header file के अंदर है। So what we are basically doing is we are declaring a header file so that the compiler knows what is the meaning of these terms, what is the meaning of printer, what is the meaning of scanning, what is the meaning of this, that, everything. All those are understood by the compiler just because of header files. And collection of header files is called library of C. Okay, तो C के लाइब्रेरी में ये सारे हेडर फाइल्स है, stdio.h, conio.h, string.h, stlib, math, time,
and there are much more. ये just basic just important ones, but there are much more. And each of these header file contains built-in functions. What are built-in functions? These printf, scanf, getc, these are built-in functions. All these built-in functions are present inside the header file stdio.h. stdio.h इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है printf, scanf, gets, getc, getas, getchar, puts, putchar, ये सब जितने भी है ये सब stdio.h के अंदर है. Okay, so this is the reason अपन printf लिखने के पहले हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं. देखो क्या हुआ. I deleted the header file and now I try to run. ये देखो क्या आ गया. वार्निंग्स आए कितने सारे. इन दी फंक्शन मेन वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ printf, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन printf. देखो ये कंपाइलर वार्निंग दे रहा है अपने को कि printf का मतलब मुझे पता नहीं, मुझे समझाओ क्या होता है printf का मतलब. ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो इनके पास कुछ गार्बेज कलेक्शन का फीचर है. और यस सर, बिकॉज क्योंकि वो कंपाइलर वो जानना चाह रहा है कि प्रिंटफ का जो मेन हेडर फाइल्स है वो क्या है. हाँ, printf क्या है उसे नहीं पता. ये देखो इसीलिए अपने को ये एरर आया. अभी मैं लगा देता हूँ वापस ये हेडर फाइल. फिर आ जाएगा. अब कोई एरर नहीं है. देखो कोई एरर नहीं है. राइट. ये हमने कर लिया. पहला प्रोग्राम अपने सब लिख लिया. ये सक्सेसफुली रिटन फर्स्ट लाइन ऑफ कोड. अच्छा अब देखते हैं कमेंट्स क्या होता है. व्हाट आर कमेंट्स? फॉर एग्जांपल आई राइट we have written 4 lines of codes, 4 printf statements. अभी इसका आउटपुट कैसा आएगा कोई बता सकता है? It will be output of this. मतलब ऐसे आएगा क्या? पहले हेलो वर्ल्ड, फिर आएगा माय नेम, फिर आएगा आई एम लर्निंग सी, फिर आएगा सी इज माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इस तरह आएगा क्या? शायद ऐसा ही लगता है. बाकी सबको क्या लग रहा है? इसका मैं रन करूंगा तो कैसा आएगा? ऐसा आउटपुट आएगा इस टाइप का. मे बी सर. ये अभी अभी रन करके देखते हैं क्या होता है. ये देखो क्या आया. हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज विष्णु, आई एम लर्निंग सी, सी इज माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग. सब एक साथ चिपक चिपक के आ गया. इट हैज नॉट चेंज्ड इट्स लाइन, जबकि हमने तो अलग अलग लाइन में लिखा था और यहाँ तो सब एक लाइन में आ गया. सर हाँ हेलो. या सपोज हम लोगों ने जैसे यहाँ पे लाइन बाय लाइन करके हमने पहले कोडिंग किया और आउटपुट में हमें एक सेंटेंस में मिल गया, तो क्या हम जब हम लोगों ने एक ही लाइन पे क्या हम सारे सेंटेंस ले सकते हैं क्या? एक लाइन में सारा सेंटेंस लिखना है.
सपोज जैसे कि हमने 4 पार्ट वो में भी कर डिवाइड सकते हैं, करके हाँ कोड लिखा कर है सकते हमने। हैं, बताऊंगा अभी, अभी वही बताऊंगा। तो अभी अपन को क्या करना होगा, व्हाट वी वांट, ये 4 लाइन ऐसे 4 अलग अलग लाइन में है। These 4 sentences are to be printed line by line, each after the other. But what we got here is one single line without any spaces or without any line change. So what we can do here, we can put a special symbol which is \n. Okay, \n. It is, what is the purpose of \n? Its purpose is to change the line. ये मैंने अपने इसमें भी दिया, ये देखो escape sequence, बहुत सारे होते हैं \n, t, डबल बैकस्लैश। ये \n क्या है, इट इज अ escape sequence. What is the meaning of this? It means we have to change the line, simple. तो जब भी अपन \n लिखेंगे कहीं भी, इसका मतलब लाइन चेंज होने वाली है। तो हेलो वर्ल्ड के बाद लाइन चेंज \n, विष्णु के बाद \n, तो वापस लाइन चेंज हो जाएगा। अभी इसके बाद फिर \n लिख देते हैं। These are escape sequences. These are called escape sequences. Now let's run the program. Look, right? We got the desired output. सर एक और क्वेश्चन। हाँ, जैसे कि हमने तो 2 टाइप्स का ही देख लिया। एक हमने देखा कि 4 पार्ट में हम लोगों ने प्रिंट एफ करके मेंशन किया और आउटपुट में हमें एक सेंटेंस में सारा मिल गया, वो एक हो गया। और हम लोगों ने अभी क्या किया कि पर सेंटेंस में लास्ट में हम लोगों ने \n करके मेंशन किया और आउटपुट में हमें मतलब कि मल्टीपल्स ऑफ सेंटेंस में हमारे नाम आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या ये कर सकते हैं क्या कि हम लोगों ने जो 4 सेंटेंस में प्रिंटफ में मेंशन जो किया है, वो हम क्या एक बार प्रिंटफ में मेंशन करके वो साइड में लिख सकते हैं क्या? सपोज हेलो वर्ल्ड डॉट माय नेम, फिर उसका आउटपुट। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक चीज बताऊं, उसके बाद उसी चीज पे ना आ रहा हूँ। अभी देखो कमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू प्रिंट दिस लाइन, आई एम लर्निंग सी, आई डोंट वांट टू प्रिंट दिस लाइन, so what can I do? I can comment it out like this, double backslash. This is called commenting. Commenting means this line won't be executed. Let's run this. Look, hello world, my name is Vishnu, C is my first programming language. I am learning C is lost. It is lost from the output because I have commented out this line. If I want to multi-comment, for example, I want to comment this and this line, what will I do? I'll do single line commenting, and I want to comment out this also. Okay. What will be the output? Only hello world, because I have commented all the 3 lines. Only hello world. This is called multi-line commenting, double backslash. But suppose we have 100 lines of code, then it won't be possible for us to comment out each and every line. ठीक है, अपने पास अगर 100 लाइन का कोड हुआ तो क्या सब में बैठ के बैकस्लैश 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 मारते रहोगे क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे यूज करते हैं, इस तरह। कमेंटिंग 2 टाइप के, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। इट स्टार्ट्स विद / and / and */. एस्केप सीक्वेंस में ध्यान रखना / लगता है एंड कमेंटिंग में /. तो अभी देखो /* यहाँ पे लगा एक एंड */ यहाँ लगा एक, तो ये पूरा पैराग्राफ कमेंट आउट हो चुका है। दिस होल पैराग्राफ इज कमेंटेड आउट। Hello world. This is hello world print because I've commented out this whole paragraph. Okay, now if you want to write all these in only one line, who asked the question?
इसका था भी क्वेश्चन जो पूछ रहे थे इतनी देर से, नरेंद्र पूछ रहे थे। नहीं अच्छा नहीं। नहीं सर, आया समझ में आया। आ गया, आया समझ में। ठीक है, तो अभी एक लाइन में अभी अपने को सब लिखना है, तो क्या करेंगे अपन, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जो स्केप सीक्वेंस है ये एक लाइन में भी हो जाएगा। बैकस्लैश एन, आई एम लर्निंग सी, बैकस्लैश एन, सी इज माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है, इसकी तो जरूरत नहीं, डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, अभी ये एक लाइन में मैंने पूरा लाइन लिख दिया, हेलो वर्ल्ड बैकस्लैश एन, माय नेम इज विष्णु, फुल स्टॉप, बैकस्लैश एन, आई एम लर्निंग सी, बैकस्लैश एन, सी इज माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हर बार बैक स्लैश के कारण लाइन चेंज हुआ, ठीक है, लाइन चेंज हुआ इसके कारण बार बार। देखो, ओके। I have another query. व्हाट? What if we comment out each and every word here, but still I write printf, then what will happen? If I comment out this main, header file, all these, you'll get an error. Oh, sorry, look, error आ गया, no output। This is the basic template of a C program. Hashtag include stdio.h, int main, return 0 within curly braces. Okay, keep it in mind, this is the basic template. Whatever you are writing here inside the main function. Whatever you are writing, all the codes will be done here, all the codes. Yeah, everything will be written inside the main function. This is the area where you have to actually write the code. ठीक है, तो अभी सबको समझ में आया, कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। हाँ, सर अभी ये बैक स्लैश टी, डबल बैक स्लैश, ये आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बैक स्लैश टी दे देता हूँ, टी क्या होता है, एक टैब का स्पेस, ये सब भी एक टैब के स्पेस से दूर दूर हो जाएंगे सब। ये देखो, वन टैब का स्पेस है सब लाइन, escape sequences escape. एंड कमेंट्स देख लिया आपने। सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट करना है तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार, वहां से स्टार्ट होगा पैराग्राफ, और जहां तक कमेंट आउट करना वहां तक स्टार बैक फॉरवर्ड स्लैश लगाना। ओके, किसी को कोई डाउट है? प्रिंट प्रिंटफ के बाद वो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके वो हमेशा वैसे ही रहेगा। अगर कुछ उसके जगह हम लोग सेकंड ब्रैकेट हाँ, ये हमेशा उसके फर्स्ट बाद और उसके बाद सेमीकोलन भी शायद सेमीकोलन मैंडेटरी है यस ऑलवेज। यस, सी इज अ वेरी लैंग्वेज, if you miss out a semicolon or if you give second bracket you will get a error, तो ये सब चीज का ध्यान रखना होगा। each and every sentences, each and every instruction in C program will have to end with a semicolon, ये semicolon से end होना जरूरी है वरना error आ जाएगा। And must start with the first bracket, right?
and it should start with first bracket. अभी ये तो ऑनलाइन कंपाइलर अपने यूज़ कर रहा है, ठीक है। मैं अभी सब कोई ये वाला एक कंपाइलर डाउनलोड कर लो, जिससे बिना नेट के भी आप लोग घर में प्रैक्टिस कर पाओगे प्रोग्राम। डाउनलोड dev C++। करो सर। Okay, we will download. सोर्स forge.net ये वेबसाइट का नाम, ठीक है। मैं dev C++ डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा इंस्टॉल, जस्ट क्लिक ओके फॉर इंग्लिश। हाँ सर, अग्री करने जाना नहीं, आई अग्री कर देना। ये जैसा है, कुछ चेंज करने का इसमें जरूरत नहीं, जस्ट क्लिक नेक्स्ट, अनइंस्टॉल। व्हाट इज dev C++? dev C++ इज अ कंपाइलर, ठीक है। अपने जो यहाँ कर रहे थे, यहाँ पे जो कर रहे थे, ये तो ऑनलाइन कंपाइलर है, गीक्स फॉर गीक्स का कंपाइलर है ये। तो वी आर डाउनलोडिंग ऑफलाइन कंपाइलर so that we can practice even without internet connection. We are downloading this compiler, dev C++. dev C++ will convert a C program into machine codes and then show us the output. कंपाइलर अभी करेगा ये सब काम, अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं। इंग्लिश नेक्स्ट। कलर कोई भी चूज कर लो, क्लासिक, मुझे ये पसंद है पर्सनली, ट्वाइलाइट। ये आप लोग अपने मर्जी से कोई भी चूज कर लो, मैं ट्वाइलाइट यूज करता हूँ। नेक्स्ट। ये खुल गया अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है, सबको दिख रहा है। हाँ, दिख रही है। ओके, तो अभी अपन न्यू में जाएंगे। एक अपने को प्रोग्राम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, फाइल में जाना है, देन न्यू एंड देन सोर्स फाइल। ये आ गया अपना सोर्स। अब यहाँ पे वी हैव टू कोड हैश टैग इंक्लूड, और छोटा है फॉन्ट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज इसको थोड़ा बढ़ा के 18 ठीक रहेगा। ओके, ये देखो बड़ा हो गया, ठीक है। फॉन्ट कहाँ से चेंज करना है, टूल्स में एडिटर ऑप्शन, यहाँ पे फॉन्ट्स टैब है, यहाँ पे साइज बड़ा कर लेना थोड़ा, बिकॉज इट इज अ बिट स्मॉल। ये साइज आपको दिख रहा है ना,
Is it visible? Yeah. यहाँ तक सबको सेम लिखना है, जो भी प्रोग्राम बना रहे हो हमेशा ये 4-5 लाइन तो सबको सेम लिखनी है। अभी ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ से ले सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं कि वहीं से हो। ओके, तो ये पूरा हमें मेमोराइज कर लेना है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो ब्रैकेट है ये इधर भी आ सकता है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं ऐसे भी। अच्छा, In short, this has to be after me and this has to be after return 0. Okay. Standard है ये तो अपना पहला प्रोग्राम जो अपने बनाया था वहाँ वही लिखते हैं वापस। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड। अब क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, इसको रन करना होगा। रन करने के क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कंपाइल, कंपाइल करने से कंपाइल हो जाएगा, रन करेंगे तो रन होगा। कंपाइल एंड रन साथ में करना तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपाइल एंड रन सिलेक्ट करते हैं एक साथ दोनों काम होंगे। अभी इसको एक जगह आपको सेव करना होगा। फर्स्ट यू हैव टू सेव योर फाइल, लेट इट बी इन डेस्कटॉप। आई एम मेकिंग अ न्यू फोल्डर हियर फर्स्ट। ठीक है, तो ये आप लोग सबको आई विल गिव सम असाइनमेंट्स टू यू। आप सबको एक फोल्डर बनाना है, उसमें फिर मैं चेक करूंगा अगले दिन। ठीक है, तो एक फोल्डर आप लोग बनाओ, इसका नाम रख दो सी प्रोग्राम्स। ठीक है, अभी सी प्रोग्राम्स के अंदर सेव कर दो। ये पहला प्रोग्राम है, इसका नाम एक देना होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? दिस इज हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो लेट इट्स नेम बी हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। क्लिक ऑन सेव, अ प्रोग्राम हैज बीन सेव। और ये देखो आउटपुट भी आ गया, हेलो वर्ल्ड। दिख रहा है सबको? हाँ, प्रोसेस exited after 0.1303 seconds with return value 0। तो इतना टाइम लगा अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट होने में। अब कोई भी की दबा दो, एंटर दबा दो तो ये हट जाएगा। ठीक है, अभी क्रॉस कर दो इसको। अब ये देखो, ये सी प्रोग्राम्स का फोल्डर है, दिस इज माई फोल्डर विच आई हैव मेड। दिख रहा है सब? व्हेन यू ओपन दिस फोल्डर you will see two types of program here, two types of files. One is cpp file, ये देखो इसका एक्सटेंशन डॉट cpp। और एक अपना ये डॉट exe है। डॉट exe और डॉट cpp मतलब ये अपना वो है जो कंपाइल होने के बाद बना। दिस इज आफ्टर कंपाइलेशन, दिस इज आवर सॉफ्टवेयर। when I double click on this, अभी वो गेट सी से काम खुल नहीं रहा। ठीक है, when I click on this file cpp, open using DSC++, always use the tab to open cpp file से टिक कर दो। तो ये आपका कोड खुल जाएगा। तो डॉट cpp फाइल जो है वो आपका कोड है, और ये जो है डॉट exe फाइल ये कंपाइल होने के बाद जो बनता है वो है आपका। तो इस तरह अपन प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है,
अभी एक और प्रोग्राम बनाते हैं। न्यू में जाके न्यू सोर्स फाइल ये बना, इसको क्लोज कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड को इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी क्या लिखना होगा मुझे कोई भी प्रोग्राम बनाने के पहले? अभी आप लोग गाइड करो क्या लिखना होगा। हैशटैग इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद stdio.h, ठीक है। फिर एक मेन फंक्शन बनाना होगा इंट में, रिटर्न 0। ठीक है, ये अपना बेसिक टेम्पलेट है। ओके, यहाँ printing lesson, my name is I am learning C program. C is my first execute, compile and run। ये सेव कर लेते हैं, ये इसी फोल्डर में, सी प्रोग्राम फोल्डर में सेकंड डेमो प्रोग्राम नाम लिख देते हैं इसका। ठीक है, तो अपना आउटपुट आ जाएगा इधर, हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज विष्णु मिश्रा, आई एम लर्निंग सी प्रोग्राम, सी इज माय फर्स्ट लैंग्वेज। ये देखो सेकंड प्रोग्राम का भी .cpp फाइल .exe फाइल बन गया। वापस कंपाइल एंड रन। देखो अब exe फाइल खुला, ये जो exe फाइल है अब खुल रहा है। ये क्यों खुला? क्योंकि मैंने ये फंक्शन यूज किया, get ch। what is the purpose of this function? This function holds the screen, holds the output screen until a key is pressed on the keyboard। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा वो अपना स्क्रीन होल्ड नहीं होगा। फाइल रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ तो आ गया, लेकिन अभी exe फाइल नहीं खुलेगा। ये देखो exe फाइल नहीं खुल रहा, जितना भी प्रेस करो नहीं खुल रहा है। तो गेट ch फंक्शन का काम है अपने आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना, और ये क्या है, #include दिस इज अ हेडर फाइल। गेट सर हाँ, सर अपनी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, मुझे तो दिख रहा है। मुझे शो नहीं हो रही है, शायद मेरा नेटवर्क इशू होगा।
हाँ शायद फिर आपको फुल स्क्रीन मोड हो गया होगा ऑन। फुल स्क्रीन एग्जिट करके देखो शायद। तो ये conio.h है, it is a header file which contains the definition of getch. This is why I have included this header file. इसको अगर अभी मैं कमेंट आउट कर दूं, देखो एरर एरर पढ़ना भी सीखो. If I comment out this and then save, compile and run, look, यहाँ एक एरर आ गया. क्या एरर है? get ch was not declared in the scope. get ch मतलब क्या होता है कंपाइलर को नहीं पता. जो है ये get ch क्या लिख दिया, मुझे नहीं पता इसका मतलब. ये get ch का मतलब stdio में खोज रहा था मगर इसको मिला नहीं, तो it has thrown us a error. get ch की जो डेफिनेशन है ये conio.h में रहती है, इसलिए I have to include this header file also, conio.h. अभी कंपाइलर रन करते हैं, देखो आ गया एरर 0, वार्निंग 0, कुछ नहीं. ये देखो आउटपुट आ गया. क्लोज करते हैं प्रोग्राम. अब ये एक सी फाइल खोलते हैं, तो देखो खुल गया. अभी जब तक मैं एक की ना दबाऊं, फॉर एग्जांपल आई प्रेस एंटर, अब बंद हो गया ये. अभी हेलो वर्ल्ड नहीं खुल रहा, हेलो वर्ल्ड भी नहीं खुल रहा, तो इस पर क्या करना होगा, एक गेट से इस फंक्शन लगाना होगा. क्या करेंगे, पहले हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं, new.h गेट सी एच. गेट सी एच मतलब क्या होता है, गेट कैरेक्टर. ठीक है, गेट कैरेक्टर मतलब जब तक कीबोर्ड से कैरेक्टर नहीं मिलेगा ये आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखेगा. जैसे इसे एक कैरेक्टर मिल जाएगा, कैरेक्टर मतलब एक की प्रेस जैसे अपने करेंगे, ये अपना काम खत्म कर देगा. अभी कंपाइल रन करते हैं, ये हो गया हेलो. ये बंद करते थे सब, क्लोज एवरीथिंग, एंड नाउ आई ट्राई टू ओपन दिस फाइल. ये देखो आ गया, हेलो वर्ड खुल गया. अभी कोई भी की प्रेस करो बंद हो जाएगा. ठीक है, आज ठीक. तो नहीं रखते हैं अभी. सब कुछ समझ में आया आज जो जो मैंने पढ़ा है? हाँ. किसी को कोई डाउट एक है? मुझे है. क्या? ये प्रिंटफ जब हमने लिखा तो प्रिंटफ अगर स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा है फिर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से भी कुछ. सी प्रोग्रामिंग इज अ सेंसिटिव लैंग्वेज. इसमें पी स्मॉल ही रहेगा, पी को कैपिटल लिख दोगे एरर आ जाएगा. ओके, बाकी किसी को कुछ डाउट है? फिर इसके बाद क्लास कब लगेगी? अब थर्सडे को. तब तक के लिए कुछ असाइनमेंट्स या फिर कुछ मतलब देंगे आप करने के लिए, फिर इतना कुछ मैंने होमवर्क पढ़ाया असाइन नहीं है मतलब कि इसी को रिवाइज करते हैं. बस जो जो मैंने पढ़ा है वही सब रिवाइज करो.